Starting with the new segment, that is what we understand is the market indicators. मार्केट इंडिकेटर्स ये बताता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. The first one is the breadth index, second is the volume of the transactions, the third is the confidence index, and the fourth is RSI, that is the RSA, relative strength analysis और relative strength index भी बोला जाता है, and the last is odd lot theory. These are the 5 types of like the market indicators. The first one is the breadth index. Let us start with that. It is an index that covers all securities traded. It is computed by dividing the net advances or net declines in the market by the number of the securities traded. तो देखो, जो जो सिक्योरिटीज का प्राइस इंक्रीज हुआ माइनस जो जो सिक्योरिटीज का प्राइस डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज. उसको ब्रेथ इंडेक्स कहा जाता है. टोटल नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी इन द डिवीजन. ऐसे मैं थोड़ा फिगर्स ले रहा हूं. सपोज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ है वो है 70. नंबर ऑफ प्राइजेस से जो डिक्रीज हुआ है लेट अस से इट इज 20, and so the total number of the securities in the market are 100. So it is 50 divided by 100, that comes to 0.50. That is the way so the breadth index is calculated. The breadth index either supports or contradicts the movement of the Dow Jones averages. If it supports the movement of the Dow Jones averages, this is considered as a sign of the technical strength, and if it does not support the averages, it is a sign of the technical weakness. So it may happen that say it will support the Dow Jones से the averages का conclusion and it may not. अगर वो सपोर्ट करेगा then in that case से जो हमने डाउ जोन्स से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं से वो सही होगा, ऐसा वो लोग कहना चाहते हैं. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस. जैसे कि उन्होंने वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन में उन्होंने दिया है कि सपोज कि क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस, तो हम लोग समझ सकते हैं दैट्स द मार्केट इज बुलिश, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. At the same time that there is a huge volume of the transactions, huge volume of the transaction. तो उस केस पे हम लोग क्या we are very much sure कि हाँ मार्केट बुलिश ही है. If the closing price is lower than the opening price, तो apparently हमको लग रहा है कि prices are going down and there is again a huge volume of the transaction. तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ let's say the market bearish ही है. तो इसके साथ साथ अगर वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा है तो वी गेट से अ कंफर्मेशन कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं. बट उसके साथ साथ सपोज कि ऐसा नहीं हो रहा है, द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन इज लो, तो वी आर हैविंग से कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली प्राइसेस आर गोइंग डाउन बट द वॉल्यूम इज ऑल्सो लो, then in that case हम लोग बोल सकते हैं that's a strongly, so we cannot say that's the things are going in one direction only. तो ऐसा ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं that's the breadth index का जो conclusion है और डाउ जोन्स इंडाइसेस का जो conclusion है वो मैच हो सकता है या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, ऐसा उनका कहना है. The volume of the shares traded, volume of the transaction, that is volume of the shares traded in the market provides a useful clue on how the market would behave in the near future. वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, then definitely we understand that the market is either bullish or bearish. A rising index of the prices with increasing volume, देखो क्या बोल रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, would signal buy behavior because the situation reflects an unsatisfied demand in the market. Similarly, falling market
विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, प्राइसेस डिक्रीज भी हो रहा है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. Signals a bear market and the prices would be expected to fall further. A rising market with decreasing volume, उसमें क्या है, you cannot draw a perfect conclusion. Indicates a bull market, while falling market with dwindling volume indicates a bear market. बट स्टिल उसमें आप लोग इतना श्योर नहीं हो सकते हो. जैसे कि वी अंडरस्टैंड दैट से अगर कोई भी पोल होता है और उसमें लेट अस से दैट से द 52% is the voting in favor of any decision and 48% is against. तो उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट से देयर इज नॉट स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी. ऑफ कोर्स द like the polls in favor of the decision is more than say the votes against that say the decision, but still we can say that say यहाँ पे strong majority नहीं है. suppose 80-20 है, then in that case हम लोग बोल सकते हैं कि strong majority है. ऐसा कुछ ये लोग कहना चाहते हैं. thus the volume concept is best used with another market indicator. तो उसको दूसरे मार्केट इंडिकेटर के साथ साथ यूज किया जाता है, such as Dow theory. Next, confidence index. It is supposed to reveal how willing the investors are to take chance in the market. तो इन्वेस्टर्स कितना रिस्क लेने को तैयार है वो यहां से पता चलेगा. It is the ratio of the high grade bond yield to low grade bond yield. Friends, we understand that there is a term called credit rating. तो मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं. जैसे कि ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है, डबल ए क्रेडिट रेटिंग है, ए है, ट्रिपल बी है, डबल बी, बी एंड सो ऑन. तो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं दैट्स ए कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द हाई ग्रेड बॉन्ड यील्ड टू लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड. ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे तो सी वाला बॉन्ड आएगा. तो ए वाला जो होता है ना वो हाई ग्रेड, दैट इज हाई ग्रेड बॉन्ड है, और सी वाला जो है ना वो लो ग्रेड है. दिस इज हाई ग्रेड एंड दिस इज लो ग्रेड. यानी जो बॉन्ड का रेटिंग ट्रिपल ए है वो बॉन्ड में इन्वेस्टर को रिस्क कम है. क्यों? क्योंकि वो कंपनी का नेटवर्थ अच्छा है, वो कंपनी का डेट फाइनेंसिंग कम है, वो कंपनी अपना रेगुलरली सारा लायबिलिटीज पे करता है, वो कंपनी का मार्केटेबिलिटी अच्छा है एंड सो ऑन. तो जो ट्रिपल ए बॉन्ड होगा ना फ्रेंड्स, उसमें ऑफ कोर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यील्ड टू द इन्वेस्टर वो कम रहेगा. सपोज यहाँ पे 5% है फॉर एग्जांपल, तो ये जो सी वाला है ना उसमें रिस्क इन्वेस्टर को ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे से उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए. सपोज उनको 9% का रिटर्न चाहिए, तो कुछ ऐसा होगा. तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं दैट से हमको ऐसी 10 सिक्योरिटीज का एवरेज करना है, ऐसी 10 सिक्योरिटीज का एवरेज करना है, और फिर उसका एक रेशियो कैलकुलेट करना है. जैसे कि 5/9, 5/10, 5/8, ऐसा कुछ भी. लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से ये वाला जो बॉन्ड्स होता है ना उसका रिटर्न ज्यादा होगा और ये वाले बॉन्ड्स का रिटर्न कम होगा. Coming back to the point, it is used by the market analysis as a method of trading or timing of the purchase and the sale of the stock, and also as a forecasting device to determine the turning profits of the market. A rising confidence index is expected to precede a rising stock market. तो इन लोगों का कहना ऐसा है दैट से जैसे जैसे ये गैप कम होगा से वैसे वैसे ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा. एंड द फॉल इन द इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रीसीड अ ड्रॉप इन द स्टॉक प्राइसेस. यानी 5/10 and let us say 7/8. So this is 0.50 and this is 0.875. तो ऐसा उनका कहना है that this is indicating that so the market will go up and this is indicating the market will fall down.
A fall in the confidence index represents the fact that low grade bond yielding are rising faster or falling more slowly than the high grade yields. The confidence index is usually, but not always, a leading indicator of the market. Therefore, it should be used in conjunction with the other market indicators. यहाँ पे फ्रेंड्स उनका थ्रू आउट द चैप्टर एक चीज तो कहना है ही कि हमको सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाय नहीं करना है, हमको मल्टीपल चीज के ऊपर रिलाय करके डिसीजन लेना है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. देखो ये वर्ड रिलेटिव क्या का मतलब है, रिलेटिव का मतलब है इन रिलेशन टू समथिंग. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस. यानी ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं दैट से कोई भी सिक्योरिटी का जो परफॉर्मेंस है वो विसाविस टू इट्स बेंचमार्क कैसा है वो हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं. यानी कि वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी सेंसेक्स का मूवमेंट होगा एग्जैक्टली वही का वही मूवमेंट से सारी सिक्योरिटीज का हो ऐसा जरूरी नहीं है. सेंसेक्स के मूवमेंट के वही प्रपोर्शन में से हमारा मूवमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है. So we try to understand, we try to analyze that say how is the performance of that particular security or that particular portfolio in relation to the market. The relative strength concept suggests that the prices of some securities rise relatively faster in bull market or decline more slowly in a bear market. तो जब प्राइस इंक्रीज होता है मार्केट में तो इनका प्राइस ज्यादा इंक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है मार्केट में इनका प्राइस कम डिक्रीज होता है. Then the other securities, that is some securities exhibit relative strength. Investors will earn higher return by investing in securities which have demonstrated relative strength in the past because the relative strength of a security tends to remain undiminished over the time. यानी मार्केट ऊपर जाता है तो इनका रिटर्न्स ज्यादा इंक्रीज होता है, मार्केट नीचे जाता है तो उनका रिटर्न्स इतना रिड्यूस नहीं होता है. रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड इन सेवरल वेज. Calculating the rates of return and classifying those returns to those securities with historically high average returns as securities with high relative strength is one of them. Even ratios like the security relative to the industry, यानी सपोज कि हम लोग रेनबैक्सी का स्टॉक लेते हैं तो रेनबैक्सी सिक्योरिटी का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना वो फार्मा सेक्टर के सारे कंपनीज के साथ उसको मैच किया जा सकता है, यानी कि उनके कोई बेंचमार्क के साथ. देन वी अंडरस्टैंड इट्स द सेंसेक्स जो है जो पूरा का पूरा मार्केट इंडिकेट करता है ऐसा कुछ भी. And the securities relative to the entire market can also be used to detect relative strength in a security or an industry. Odd lot theory. भाई ये थियरी का कहना ऐसा है कि मार्केट में दो टाइप के ट्रेडर्स हैं. एक पढ़े लिखे एजुकेटेड एंड अदर्स. जो पढ़े लिखे ट्रेडर्स है वो क्या सोच समझ के एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. वो सही टाइम में मार्केट में एंट्री लेते हैं, सही टाइम पे एग्जिट लेते हैं, सही टाइम के लिए होल्ड करते हैं, वो सब कुछ सोच समझ के करते हैं. ये जो एजुकेटेड ट्रेडर्स होते हैं ना वो हमेशा यूजुअली ऐसा करते हैं कि दे ऑलवेज से डील इन स्पेसिफिक लॉट साइज. वो लोग क्या करते हैं लेट्स से दे एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर 100 शेयर्स, 200 शेयर्स, 300 शेयर्स लाइक दैट. ये जो बाकी के ट्रेडर्स है जो सिर्फ रूमर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको क्विक रिटर्न्स चाहिए, पैनिक हो जाते हैं, वो इन्वेस्टर्स ऐसा होता है वो लोग क्या करते हैं 6 शेयर्स में डील करते हैं. वो क्या करेंगे 61 शेयर्स में डील करेंगे, वो क्या करेंगे एक शेयर में डील करेंगे.
ऐसा क्या करेंगे, वो एकदम से ऑड नंबर ऑफ शेयर्स के लिए डील करेंगे। लॉजिकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से ये जो पढ़े लिखे ट्रेडर्स है ना, वो ओवर द टाइम पीरियड मार्केट को बीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किया। ये लोग तो सिर्फ रूमर्स के ऊपर ही भरोसा करते हैं। तो हमको ऐसा देखने का है कि ऑड लॉट नंबर के शेयर्स में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑड लॉट नंबर ऑफ शेयर्स में, ऑड लॉट का मतलब है दैट इज यूजुअली से अदर देन वी अंडरस्टैंड दैट से 100, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग बाय कर रहे हैं। तो हमको पता है ये लोग तो गलत ही करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सेल करना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं ना वो गलत है, वो लोग सेल कर रहे हैं, तो हमको बाय करना चाहिए। यानी इनका कहना ऐसा है कि जो वो लोग कर रहे हैं ना उसके रिवर्स अपने को करने का। लेट अस रीड दिस। दिस थियरी इज कॉन्ट्राडरी ओपिनियन थियरी। वो जो करते हैं ना उसके उल्टा करने का, ऐसा। इट अज्यूम्स दैट द एवरेज पर्सन इज यूजुअली रॉन्ग। एवरेज का मतलब है कि जो रूमर्स के ऊपर भरोसा करते, वो जो सही में एनालिसिस करके नहीं करते वो। एंड द वाइज कोर्स ऑफ द एक्शन इज टू परस्यू स्ट्रेटजीज कॉन्ट्रारी, यानी उनका ऑपोजिट करने का, टू द पॉपुलर ओपिनियन। The odd lot theory is used primarily to predict tops in bull market, but also predict the reversals in the individual securities.